Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the new chapter, that is Kharima of Standard 11th, Chapter 2, written by Ramanlal V. Desai. रमनलाल वी देसाई का जन्म 12 मई 1892 में हुआ था एंड उनकी डेथ दैट इज अवसान 20 सितंबर 1954 में हुआ था. રમનલાલ વસંતલાલ દેસાઈનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના શિનોર ગામમાં થયો હતો. જાણીતા વિવેચક વિશ્વનાથ ભટ્ટે એમને યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. દિવ્યચક્ષુ, ભારેલો અગ્નિ, ગ્રામલક્ષ્મી, કોકિલા, હૃદયનાથ, હૃદય વિભૂતિ એમની યશસ્વી નવલકથાઓ છે. તેમને નવલકથા ઉપરાંત નવલિકા, એકાંકી, કવિતા, ચરિત્ર, વિવેચન, પ્રવાસ તેમજ આત્મચરિત્ર જેવા સ્વરૂપોમાં પણ પુષ્કળ ખોડાણ કર્યું છે. માનવ સ્વરાબ એમના ચરિત્ર વિષયક પુસ્તકો છે. દેસાઈની નવલિકાઓમાં ખરીમાં રમનલાલ વ દેસાઈની નવલિકાઓમાં ખરીમાં વિશેષ નોંધપાત્ર બની છે. એટલું જ નહીં પણ ગુજરાતી નવલિકાના ઇતિહાસમાં પણ તેની ગણના થાય છે. સમગ્ર વાર્તામાં વાત અપરમાની છે પણ મહત્તા ખરીમાંની છે. રમનલાલ વી દેસાઈ કુસુમાયુધના પાત્રના સૂક્ષ્મ ભાવોનું સરળ છતાં સચોટ ભાષામાં તાર્કિક ચિત્રણ કર્યું છે. સાચા નિર્મદ પ્રેમની પ્રતીતિ કેવી અસરકારક નીવડે છે તે નવલિકાના અંત સાથે સૌ ભાવકો અનુભવી શકે છે. પ્રેમ સ્વયં ઔષધ છે. સામાજિક જીવનના અનેક વિરોધો અને વિશ્વમતાઓને પ્રેમના ઔષધથી મિટાવી શકાય છે. એની પ્રતીતિ નવલિકા વાંચ્યા પછી અનુભવાશે. નાનકડો કુસુમાયુધ આજે મૂંઝવણભર્યો આનંદ અનુભવતો હતો. મૂંઝવણભર્યો મતલબ કન્ફ્યુઝનવાળા, આનંદ મતલબ ખુશી. ગમી જાય એવી સારા કપડાં ધારણ કરેલી સ્મિત ભરી मतलब एकदम खुश रहने वाली स्माइल, हमेशा जिसके फेस में स्माइल हो, स्मित भरी युवती घर में फरती थी. मतलब वो बहुत कंफ्यूज था और खुश भी था क्योंकि उसने देखा कि अच्छे कपड़े पहन के एक लेडी घर में अच्छे हंसते फेस के साथ घूम रही है. કુસુમાયુધ તેના માતા પિતાને એટલો વાલો હતો કે તેનું નામ લાંબુ પણ નવાઈ ભર્યું પાડ્યું હતું. પરંતુ માતા એ પુત્રને લાડ લડાવવા જીવી નહીં. તેને 4 વર્ષનો મૂકી તે સ્વર્ગવાસી થઈ અને ત્યાર પછી 2 વર્ષ વીતી ગયા છતાં તેની માતા પાછી આવી नहीं. वो अपने मम्मी पापा का बहुत लाला था लेकिन उसकी माता जैसे ही उसका बॉर्न हुआ वैसे उसकी डेथ हो गई एंड वो 2 इयर्स का हो गया लेकिन कोई उसकी मम्मी उसके पास वापस नहीं आई. माँ क्या गई ये प्रश्न कुसुमायुधना हृदय में सतत रम्या करतो હતો. मतलब उसको हमेशा ऐसा लगता मेरी मम्मी किधर चली गई है. कोई कहतु ये तो प्रभुना धाम में गई, कोई कहतु मामा ने घेर गई, कोई कहे ये तो यात्रा करवा गई छे, नौकर कहतो ये तो मरी गई. मतलब हर इंसान उसको अलग अलग रीज़न देता कि तुम्हारी माँ, वो सबको मेरी मम्मी किधर चली गई. तो सब उसको अलग अलग, कोई बोलता कि भगवान के दर्शन करने गई है, कोई बोलता कि मामा के घर पे गई है, कोई बोलता यात्रा करने के लिए गई है. और उसका नौकर जो था उसको ऐसा बोलता था वो तो तेरी माँ तो मर गई, अब नहीं आएगी वापस. ठीक है, પણ મને લીધા વગર કેમ ગઈ? કુસુમાયુધની એ આંસુભરી ફરિયાદ સૌની આંખમાં આંસુ લાવતી હતી. 1 વર્ષ સુધી એ ફરિયાદ કરી થાકેલા બાળકે છેવટે પ્રશ્ન બદલ્યો, પણ પાછી તો આવશે ને. मतलब वो कंडाल गया था सबको पूछ के मेरी मम्मी कहाँ गई. फिर उसने 1 साल तो कंटिन्यूस ये राग लगे. फिर उसने ऐसा पूछना शुरू किया लेकिन मेरी माँ वापस तो आएगी ना, मतलब वो रह तो नहीं गई ना उधर, वो वापस तो रिटर्न आएगी कभी ना कभी. એ પ્રશ્ન સાંભળી સૌ કોઈ તેની સામે જોઈ રહેતું. ક્વચિત આંખ ઉપર લૂંગડું ઢાંકી દેતું અને કોઈ વખત ધડકતે કંઠે જવાબ આપતું, हाँ આવશે હો, जाओ रमो. मतलब कोई कभी एकदम चुप हो जाता था, आँख में से आंसू आ जाते थे तो आँख मतलब छुपा लेता था. और कोई
दिल पे पत्थर रख के बोलता अरे आएगी आएगी तू जा अभी खेलने जा, ठीक है। તે દોડતો રમતો હસતો 4-5 દિવસ પછી પાછો એનો એ પ્રશ્ન પૂછાતો. છેવટે તેને એ પ્રશ્ન પૂછવાનું પણ ઓછું કરી નાખ્યું. આસપાસના સર્વ મનુષ્યોએ કાવતરું કરી તેને તેની માથી વિખૂટો પાડ્યો હોય એવી માન્યતા તેની હૃદયમાં જન્મી અને તે એકલો રમવા લાગ્યો. માત્ર રાત્રે ઊંઘમાં તે કોઈ વાર लवी उठतो माँ माँ, मतलब उसको लगा कि ये जो मेरे आजू बाजू जितने लोग हैं उन लोगों ने शायद मेरी मम्मी को गायब किया है, तो वो सबसे बात करना बंद कर लेता है, एकदम अकेला अकेला ही रहता है, ठीक है। कभी कभी रात को उसको नींद में से ऐसा अचानक उठ के ऐसा लगता है मेरी माँ कहाँ चली गई, ठीक है, तो वो एकदम डर जाता है। તેનો પિતા ઝબકીને જાગી ઉઠતો અને તેને શરીરે હાથ ફેરવતો. એકાએક તેને સુંદર મુખવાળી કોઈ સ્ત્રી ઘરમાં જોઈ. માનું મુખ કોઈ પણ देखावड़ी युवती माँ जोवा ते मत, मतलब क्या जब भी वो अचानक उठता था नींद में से माँ बोल के, तो उसके पप्पा एकदम अचानक उठ के उसके शरीर पे हाथ फेरते मतलब हाथ से ऐसे आराम देते थे ताकि वो धपक के उठ ना जाए। और है ना, अचानक उनके घर में कभी भी कोई अच्छी दिखने वाली लेडी आती थी तो हमेशा उसको उस नज़र से देखता था जैसे कि वो उसकी माँ हो। माना सरखું લુંગડું પહેર્યું હોય એવી સ્ત્રીને તે धारीने જોતો, मतलब लुंगड़ू मतलब एक ड्रेसिंग होती है कि माँ की जैसी ड्रेसिंग अगर कोई लेडी ने की होती है तो उसको घूर के देखते थे। एवी कोई स्त्री મળવા આવી હોય તેને ઘરમાં રહેવા आग्रह करतो, मतलब ऐसी कोई लेडी उसको दिखती तो उसको रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ हमारे घर में ही तुम रुक जाओ। मानी नज़रनो भूखियो बाળક आम तेनी समझ प्रमाणे मानी शोधखोज કર્યા करतो, मतलब उसकी एज के हिसाब से वो 2 साल का था खाली, उसकी एज के हिसाब से वो मम्मी को ढूंढने में व्यस्त था। मतलब उसको ऐसा था कि वो हर इंसान में उसकी मम्मी को ढूंढता था कि मेरी मम्मी प्लीज़ आ गई हो अब। બીજી સ્ત્રીઓ આવીને જતી રહેતી, આ સ્ત્રી તો પાછી બધાની માફક નાસી નહીં જાય એ વિચારે તેને ગભરાવ્યો. સૌની માફક આ યુવતીએ પણ તેને પાસ બોલાવ્યો. તેને 2-3 પેટીઓ પોતાના સુવાના ઓરડામાં ગોઠવાવી. તે ઉપરથી એને લાગ્યું તો ખરું કે આ સ્ત્રી બહુ ઝડપથી નાસી નહીં જાય, છતાં ખાતરી કરવા તેને પૂછ્યું તમે અહીં રહેશો કે જતા રહેશો, मतलब क्या उसको ऐसा लगा जैसे दूसरी लेडीज़ आती है फिर निकल जाती है, ऐसे ये भी लेडी जो अभी आई है जिसको उसने देखा है तो क्या वो भी दूसरों की तरह भाग तो नहीं जाएगी ना। लेकिन उनने क्या पेटी मतलब क्या होता है जो अपन अटैची बोलते हैं, जो अपन बोलते ना लगेज, तो उनने 2-3 लगेज रूम में जाके रखे, तो उसको लगा इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी शायद से, बिकॉज इतना सारा लगेज लेके आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी। फिर भी उसने ना कन्फर्म करने के लिए उनको पूछा, वही लेडी को पूछा कि आप जल्दी से जाओगे तो नहीं ना। પેલી યુવતીને હસવું આવ્યું. એને સામો પ્રશ્ન કર્યો તમને શું ગમશે, હું રહું કે जाऊँ ते, मतलब जब उनने बोला, कुसुमायुध ने बोला कि आप इधर रहने वाले हो ना, तो उसने सामने वो लेडी ने सामने क्या बोला, कुसुमायुध को क्या पूछा क्या आप क्या चाहते हो, मैं रहूँ या चली जाऊँ। અહીં રહો તે જ ગમે, કુસુમાયુધે જવાબ આપ્યો. તેને સમજ પડી નહીં કે આ સ્ત્રી તેને बहुवचनથી શા માટે સંબોધે છે, मतलब उसको आप करके તમે करके क्यों बुला रही थी, उसको समझ नहीं आया. તે સ્ત્રીએ કુસુમાયુધે ને થોડા રમકડા આપ્યા, સારા કપડાં પહેરાવ્યા, માથું ઓળી આપ્યું, मतलब बाल बनाए, बाल अच्छे से सेट किए, પોતાની સાથે જમવા બેસાડ્યો. બાળકને બહુ નવાઈ લાગી, આવી સ્ત્રી કોણ હશે, કેમ આવી હશે. कुसुमायुध तेनी आसपास જ फरवा लाग्यो, मतलब वो कब से माँ की इच्छा में था, उसको सर ये लेडी अचानक मेरे को इतना प्यार कर रही है, मेरे नए कपड़े लाए, मेरे बाल बना रही है, तो ये लेडी कौन होगी, मतलब क्यों ये मेरी इतनी देखभाल कर रही है. तो उसको ये बहुत अच्छी लगती थी लेडी, तो उसके आजू बाजू ही घूमता था पूरे टाइम. તેને એમ પણ લાગ્યું હશે કે પોતાની માફક પિતાને પણ આ સ્ત્રી ગમી છે ખરી, પરંતુ પિતા આગળ તે બહુ ધીમે કેમ બોલતી હતી, આડું કેમ જોયા કરતી હતી, ઓછું કેમ હસતી હતી. આ સ્ત્રી ઘરમાં રહ્યા જ કરે તો કેવું સારું, माँ પણ કેવી ठहरीने घर में रहती है. मैं तो उसको क्या लगा कि क्यों ये पापा के सामने एकदम धीमे बोलती है, धीरे थोड़ा हंसती है, क्यों ये ऐसे रहती है. अब मम्मी भी कितनी शांति से रहती थी, अगर ये भी ऐसे रह जाए तो कितना अच्छा. कुसुमायुध થી રહેવાયું નહીં એટલે સૂતા પહેલાં તેને પૂછ્યું તમે મારા સગા થાઓ કે નહીં,
मतलब आप मेरे सगे मतलब रिलेटिव हो या नहीं? હા, શા સગા થાઓ મતલબ ક્યાં રિલેટિવ હો મેરે? યુવતી સહજ અટકી, તેની આંખ સ્થિર થઈ, તેને સગપનની સમજ નહીં પડી હોય કે શું. તત્કાળ સ્થિર થઈ તેને જવાબ આપ્યો, હું તમારી माँ था. उसने तुरंत क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारी माँ हूँ. माँ? કુસુમાયુધના હૃદયમાં અનેક વિચારો આવી ગયા. સગપન સાંભળતા બરોબર તેને એક વખત તો એમ જ થયું कि मानी कोटे बाजी पड़ूं मतलब माँ को तुरंत हक कर दूं. परंतु कौन जाने केम के ते एवी चेष्टा करी शक्यो नहीं. मतलब लेकिन वो चाहता था कि जाके तुरंत मम्मी को हक कर दो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया. छતાં તેને તે સ્ત્રીનો હાથ પકડી લીધો અને પોતાને બે હાથ વડે દબાવ્યો. अपन ऐसे एक हाथ, किसी का एक हाथ लेके दोनों हाथ से सब टाइट नहीं पकड़ लेते अपनी अच्छी इच्छा दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए. माँ के કહેવરાવવા માંગતી સ્ત્રી જરા હસી, परंतु એકલું હસવું કાંઈ બસ થાય? मतलब थोड़ा सा हंसी, लेकिन उसको रियल में वो फीलिंग नहीं आई थी कि सही में ही मेरी माँ है कि नहीं. उसको कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था. શા માટે તે પોતાના ખોળામાં લઈ વાલ નથી करती? क्यों ये माँ की तरह मुझे भी अपने खोड़े मतलब अपने लैप में लेके प्यार नहीं कर रही है? कुसुमायुधे शंका पूछी, तमे मारा माँ थाओ? मतलब वापस उसने ऐसे डाउट भरी नज़रों से देखकर पूछा कि सच में तुम मेरी माँ हो? बाળકની બુદ્ધિ માટેનો બાળકની બુદ્ધિ મોટાને તાવે છે. मतलब बच्चों की बुद्धि, बच्चों की जो अक्ल है वो बड़े बड़ों को ऐसे कंफ्यूज कर देती है. ठीक है. પરણીને આવી તે પહેલા જ દિવસે एक बाળક आ युवतीની कपरी परीक्षा लेतो હતો. मतलब वो कौन थी? उसके पापा की दूसरी वाइफ थी. और वो पहले दिन, अब तो शादी करके आई और पहले दिन वो छोटा सा बच्चा उसको इतने सारे क्वेश्चंस पूछता जा रहा था. તે જાણતી હતી કે મારે એક બાળકને ઉછેરવાનો છે. તે જાણીને જ તેને પોતાના લગ્ન થવા દીધા. मतलब उसको आइडिया थी कि उसको एक बच्चे को बड़ा करना, ये जान के ही उसने शादी की. परंतु बाળ ઉછેર એ માને અતિ વિકટ થઈ પડતો પ્રશ્ન અપન માને તો ઘણો જ વિકટ થઈ પડે એવો હતો. એની તેને पूरी खबर नहोती. मतलब उसको क्या आइडिया था कि उसको है ना एक बच्चे के साथ कैसे रिएक्ट करना. मतलब नॉर्मल जब माँ बनती उनको ही इतना नहीं आइडिया होता, तो ये तो फिर भी स्टेप में थी, इसको इतना कैसे आइडिया होगा कि माँ बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करना. એની તેને પૂરી ખબર નહોતી, છતાં તેને જવાબ આપ્યો, हाँ भाई હું તમારી ખરી माँ થાઉં. हाँ मतलब उसने क्या बोला? हाँ भाई मैं तुम्हारी रियल मदर ही हूँ. ત્યારે તમે મને તું कहीने केम बोलावता नहीं? तो तुम आप कर તમે करके क्यों बुलाते? तू करके क्यों नहीं बुलाते? ठीक है. एम करीश अने हूँ तमने शू कहूँ? तो बच्चे तो माँ ने क्या बोला? अच्छा ठीक है, बस मैं तुमको तू करके ही बोलूँगी. लेकिन तो बच्चे ने वापस क्या बोला? तो फिर मैं तुमको क्या बुलाऊँ? बहन के जो. तो उसने क्या बोला? माँ ने क्या बोला? मतलब स्टेप मदर ने क्या बोला? तुम मुझे बहन बोलना. ત્યારે તમે મને माँ के बा જેવો શબ્દોચ્ચાર સાંભળવાની એ યુવતીને હજી તૈયારી નહોતી. मतलब अभी तो वो छोटी थी, उसको इतना आइडिया नहीं था, उसको इतनी आदत नहीं थी माँ या बात सुनने की. तो उसने क्या हुआ? तो मुझे बहन बोलना. पत्नी तरीकेના કઈ કોડ તેને પૂરવાના હતા. माँ के बा शब्द तो બહુ ઘરડો પડે એમ તેને लाग्यो. मतलब माँ और बाल ऐसा लगता है बहुत बुढ़ी हो गई, उसको ऐसा फील हुआ. तो उसने उसको क्या बोला कि तू मुझे बहन बोलना. બાળક હતાશ થયો. એ તેની ખરી माँ न હતી. निश्वास नाखी ते ઊંઘી ગયો. मतलब दुखी होके वो सो गया कि ये मेरी रियल मदर तो नहीं है. सो पार्ट 1 में अपन ने क्या पढ़ा कि एक बच्चा था जो अपने माता पिता का बहुत लाला, लेकिन माँ ने जैसे ही उसको जन्म दिया वैसे वो मर गई. लेकिन वो बच्चा हमेशा अपनी माँ को हर लेडी में ढूंढता था. एक बार उसकी पापा ने दूसरी शादी कर दी एंड उसकी स्टेप मदर जब उसके घर पे आई तो उसको बहुत अच्छी लगने लगी. उसको पूरे टाइम वो खिलौने देती, उसको कपड़े पहनाती, उसके बाल बनाती, उसको अच्छे से खाना देती एंड वो बच्चा भी उसके आजू बाजू घूमता. वो बच्चे को वो लेडी बहुत अच्छी लगने लगी. वो बच्चे का नाम था कुसुमायुध. और फिर बच्चे ने उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू किए. तब उस बच्चे का पता चला कि मेरी रियल मदर नहीं है. तो वो निराश होके सो जाता है. अपन ने अभी तक की स्टोरी ये समझी. अब नेक्स्ट स्टोरी अपन आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. Goodbye everyone. We'll end this lecture by this session and
this part 1 and we'll continue with the part 2 in the next lecture. Goodbye everyone.